Myself Arpana Grover, Senior Faculty Member at Informatics and Coursity. Now dear students, and today's video, we'll be discussing about JNU 2021 official notification. As the official notification is out and the paper is announced to be an online paper, obviously taken by NTA. And in this particular video, we will be talking about the eligibility criteria, how to fill the online form. But in the consecutive video, which I'll be uploading after this, I'll be talking about how to give the online examination on the NTA portal. It's very important to know beforehand that how you have to appear in the examination. Beforehand, we should know that how to fill the application form. Many of the students make big blunders in filling the application form. So these types of videos will be of great help for you people regarding how to fill the application form, because हर एक लोग बता तो देते हैं कि फॉर्म आउट हो गया, एलिजिबिलिटी ये है, बट भरना कैसे है, क्या चीज चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, राइट? So that is why we people are over there and make you aware regarding each and every point how to fill the application form. And if necessary, you can call us at any point of time. The helpline numbers of our institute are given in the description. If you feel like any problem in facing any problem in filling up these application forms, or you are reluctant about what to do, what to fill, then you can call us at any time. We will be always there by your side for these application forms. In the next video, don't obviously do subscribe our video channel, that is Informatics India, which is our YouTube channel on which the regular videos are updated and uploaded regarding the latest information of the university notifications. Because abhi bhi BHU ka form abhi pada hua hai, it is yet to be out. Apart from this, many other forms are yet to be out, and for the latest updations of the forms, do subscribe our YouTube channel Informatics India. Follow us on Instagram, that is Informatics_India_MCA. This is the Instagram handle, and these type of channels are very, very helpful for you. We are having a Telegram channel also, obviously our Facebook page Informatics India, right? So these are the various links how to get connected with Informatics every time. Download our app Course Edu for the free lectures, free videos, everything is there. Now let's talk about the JNU 2021 official notification is out. Now students, this is the official notification of JNU MCA Entrance Exam 2021. Let's go through it. How to fill the MCA Entrance Exam. So online application submission of the application form is from 27th of July till 27th of August up to 5 p.m. That means the portal for the application form for filling will be open till 27th of August till up to 5 p.m. So don't wait for the last time. Fill the form early, because at the last time, in the last days, the site is very busy. You won't be able to fill up the examination, or you may be lagging behind in payment details, because last date of payment is also 27th of August up to 11:50 p.m. 5 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 बजे तक आप अराउंड अबाउट अपनी फी डिपॉजिट कर सकते हैं. बट अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली दैट उस टाइम पे पोर्टल इतना बिजी होता है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डिक्लाइन हो जाती हैं, और आपके पास जो आपके अकाउंट है वो डेबिट होता जाता है. सो मेक इट वेरी श्योर दैट यू फिल द एग्जामिनेशन प्रॉपर टाइमिंग्स, राइट? And you can fill, it's a good news that you can fill in MCA examination. Apart from MCA, you can fill 2 more exams in GNU exam. So for the first choice, you can fill is for 530 rupees for general category. SC ST के लिए 310 रुपए का फॉर्म है. BPL के लिए 110 का. जनरल कैटेगरी EWS 400 का फॉर्म है. सॉरी, ये BA ऑनर्स का. So basically from general category and EWS for MCA entrance, MCA is written over here, it is 530 rupees. For 2 choices, if you want to fill 2 examinations in one, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मुझे MCA भी फिल करना है और MSc भी फिल करना है, तो 800 का फॉर्म है. अगर आप 3 चॉइस भरते हैं तो 1000 का फॉर्म है. सो ये तीनों ही आपके पास ही हैं, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस, और कंसेक्यूटिवली SC ST एंड BPL. सो दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर फिलिंग द फॉर्म फॉर ऑनलाइन फॉर्म. अब कभी होता है कि आप लोग कुछ गलत फिल कर देते हो, तो करेक्शंस आर देयर, यू कैन मेक द करेक्शंस. कभी किसी का डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक उठा दिया जाता है, कभी किसी का फोन नंबर चेंज हो जाता है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन द ऑनलाइन एग्जाम, इन ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग. सो आप करेक्शंस कर सकते हो. इफ देयर आर एनी करेक्शंस इन द फॉर्म, you can do the corrections till 1st September to 3rd September is a correction date for this. Downloading the admit cards from NTA website is 8th of September. You can download the admit card from 8th of September. एग्जामिनेशन के उन्होंने 4 डेट्स दी हैं, 20, 21, 22 और 23 सितंबर. इन चारों में से कोई एक डेट आ सकती है आपकी.
सो मेक इट वेरी श्योर, अगर आप कोई भी फॉर्म, जैसे अगर पहले आप एमसीए भर रहे हो या कोई आप एमएससी भर रहे हो या कोई और अदर फिजिक्स भर रहे हो या केमिस्ट्री भर रहे हो, मेक इट वेरी श्योर कि इनकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है और टाइम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। ये ना तो क्लैशिंग के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट। सो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट सेशन जो होगा 9:30 से 12:30 और सेकंड सेशन जो होगा 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। सो इट विल बी अ 3 hours पेपर एंड ऑब्वियसली सेंटर एंड डेट आपको एडमिट कार्ड पे आ जाएगा। वेबसाइट इज कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर वेबसाइट। Candidates can apply for the JNU form on the online pattern only. No offline examinations, no offline form will be submitted, no other documentation. अगर आप ये काफी बच्चे पूछते हैं कि मैम हमें ऑनलाइन तो हमने सबमिट कर दिया, क्या हमें जेएनयू को ऑफलाइन भी भेजना है कि नहीं भेजना? So you don't have to send anything on the offline mode. No of your certificates, no photographs, nothing to be sent on the offline mode. Everything is online, right? So online submissions can be made on the NTA website also. So for the NTA website, this is the link for the NTA. So I'll be sharing the links in the description also. You can pick up the links from the description also, or you can note it down from here also. So applicants, see guys, मैंने आपको पहले बोला कि जहाँ पे हम 3 फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई तो इश्यूज आएंगे ही आएंगे। So जब आप एक में 3 फॉर्म भरते हैं, मेक इट वेरी श्योर कि जिसकी प्रायोरिटी आपकी ज्यादा है वो सबसे ऊपर भरिए। जैसे अगर आप एमसी कैंडिडेट हैं तो सबसे ऊपर एमसी भरिए, एमएससी मत भरिए, राइट। यू विल बी ओनली लायबल अगर आप कोई प्रोग्राम भरते हैं और तीनों में अगर एमसीए भर देंगे, वो बहुत गलत है, कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। नो, डोंट डू दिस ब्लंडर। तीनों में एमसीए मत भरिए। आपको फर्स्ट चॉइस अगर आपको एक ही भरना है तो सिर्फ एमसीए करके सेकंड और थर्ड को एम्प्टी छोड़ दीजिए, अगर आपको नहीं भरना है तो, राइट। अगर आपको कोई और पेपर देना है तब आप भर सकते हैं। तीनों चॉइसेस का मतलब ये नहीं कि तीनों में आप एमसीए भर दें, काफी बच्चे करते हैं। So these types of forms are liable to be rejected. कभी हो सकता है कि एक और चीज भी आप इस तरह से करते हैं कि आपने एक फॉर्म भरा, राइट, सेकंड फॉर्म भी आपने उसी के साथ का सेम कोर्स का भर दिया कि शायद वो सबमिट नहीं हुआ। सो अगेन अ ब्लंडर। अगर आप एक ही तरह के एक बच्चा 2 फॉर्म्स फिल कर देता है तो बोथ आर मल्टीपल फॉर्म्स आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। सो ये भी मत कीजिए, राइट। और अगर आप 3 कोर्सेज भर रहे हैं, कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3, मेक इट वेरी श्योर कि तीनों कोर्सेज में कोई रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स इनके आपस के टाइम क्लैश नहीं होने चाहिए और डेट क्लैश नहीं होनी चाहिए। डेट तो चलो मॉर्निंग इवनिंग स्लॉट्स हैं, पर टाइम क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर आप टाइम क्लैश होता है तो यू आर लायबल टू गिव द पेपर जो कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका पड़ा है, राइट। सो मेक इट वेरी श्योर, ये चीजें अपने दिमाग में रखिए। कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो कि आप फॉर्म फिल करने से पहले फिर भी आप एनटीए की वेबसाइट पर या फिर जेएनयू की वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन जरूर पढ़ें ताकि आप प्रॉपर्ली एग्जाम फिल कर सकें, राइट। सबसे मेन बात, आपके पास अपनी फॉर्म फिल करने के लिए अपनी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि आपकी वर्किंग होनी चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर। ये नहीं कि पापा का या मम्मी का मोबाइल नंबर दे देंगे, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। वाई? बिकॉज जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है जेएनयू की, वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही अटैच होगी। चाहे आपके एडमिट कार्ड्स की वेरिफिकेशन हैं या अगर आपकी कोई फॉर्म में करेक्शंस हैं और आपको करेक्शंस करनी है तो वो आपको आपके फ़ोन पे मैसेज करेंगे, या फिर अगर आपका रिजल्ट आउट हुआ है तो रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो ऑल ऑफ दिस इज communicated either on your email IDs or the mobile numbers. So these 2 things will be there for the information communication by the NTAs. So what are the steps for the filling up the online form? This I have done just in a very quick manner. Apply for the online registration using your unique email ID and your mobile number. Fill the online form and note down the system generated application. So मैंने आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो मेरी वीडियो थी, मैंने उसमें भी एक बताया था आपको कि एक डायरी लगा लीजिए अपनी, इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। जैसे अगर आपने डीयू का फॉर्म फिल किया है, उसके अंदर ईमेल आईडी क्या डाला है, उसके अंदर पासवर्ड क्या डाला है, उसके अंदर मोबाइल फोन नंबर क्या डाला है और उसका एप्लीकेशन नंबर क्या था आपका, राइट। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट लिखिए जेएनयू, उसका ईमेल आईडी क्या डाला है, उसका पासवर्ड क्या है, उसमें मोबाइल नंबर कौन सा आपने दिया है और उसका एप्लीकेशन नंबर जो जनरेट हुआ है वो क्या है। बिकॉज ये सब चीजें आपकी जब रिजल्ट आएगा ये बहुत ही काम आएंगी, इसके बिना आपका रिजल्ट नहीं निकलेगा। स्कैन फोटोग्राफ्स आपकी रेडी होनी चाहिए, 10 to 200 KB। कैंडिडेट की सिग्नेचर्स आपके एक वाइट ब्लैंक पेपर लीजिए। ये नहीं कि जैसे इफ यू से कि मुझे साइन करने हैं तो अर्पणा, नो, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट ऑफ सिग्नेचर्स। यू हैव टू गिव योर फुल सिग्नेचर्स इन द proper writing. This is how you have to go for the signatures. Take a blank paper and then scan this.
and the scanning should be 4 KB to 30 KB in the JPG or JPG format. And finally, the payments are there. Go for the payments. You can go for the online payments like debit card, credit card, net banking. जो भी आपको comfortable है, you can go for that. So this is how you can. These are the 4 steps. And third or fourth step अगर आप complete नहीं करते हैं, your form is liable to be rejected. Make it very very sure. So it's the online submission, final submission of the online form. Third and fourth step completion is very very important for you. So forms are liable to be rejected if you haven't done step 3 and step 4. There is no refund of the fees once you have filled the form. Make it very sure the form will not be, no fee will be refunded. अगर आपको लगता है कि नहीं, I want to give the exam दिया, मुझे 2 की जगह 1 एग्जाम देना था, मैंने पेमेंट 2 की कर दिया, 800 दे दिया, बट मुझे सिर्फ 1 एग्जाम देना था. So you can't get any refundage of the fee. Make it very sure जो भी आप हैं आपने करना है वो properly कीजिए. The entire application process is online. Nothing to be sent offline. Uploading of the scanned images, payment of the fees, printing, confirmation, everything should be online. And you should be very very regular with your पढ़ते रहिए अपनी email IDs पे कोई अगर GM को mails आते हैं. Candidate should not allowed to carry any instrument like geometry, pencil box, handbag, purse, any kind of thing which you feel like कि वो cheating में आपको help करेगा. So to avoid the cheating, आप इवन कि मैंने आपको पिछले भी NIT में ही बोला था कि पेंसिल बॉक्स मत लेके जाइए. आपको अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा, पेंसिल बॉक्स किसी भी एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं होता. या फिर पाउचेस ले जाते हैं आप, पाउच भी अलाउड नहीं होते, पर्स भी अलाउड नहीं होते. जस्ट अ पेन, अ पेंसिल, इरेजर, स्केल अगर आपको चाहिए आप लेके जा सकते हैं. जस्ट जो रेलिवेंट चीजें हैं जिससे कि आप एग्जाम दे पाए. अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड. अगर आप पकड़े जाते हैं आपको अंदर एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलती है. हाँ, ये है कि इफ यू आर डायबिटिक स्टूडेंट और यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ हेल्थ, आपके हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कैरी अकॉर्डिंगली योर मेडिसिन और यू कैन कैरी योर टैबलेट्स अकॉर्डिंगली. So the final instructions which are given by NTA or JNU to the candidates how to fill the application form, registration application process. So firstly, the candidate should be ready with government identity proof like Aadhaar card, election card, passport number, ration card number, bank account number, PAN card and other valid government IDs. So इसमें से कोई भी आपकी ID आपके पास होनी चाहिए. And try to have a photo ID proof. फोटो आईडी प्रूफ आपके पास हो तो वो ज़्यादा बेटर है. एड्रेस फॉर द कम्युनिकेशन एंड मोबाइल नंबर. स्कैन्ड इमेजेस अपने लैपटॉप में या फिर अपने पेन ड्राइव में रखिए. 10 KB to 200 KB. Scanned images of signature. 4 KB to 30 KB and bank account details for the fee payments. This is the necessary prerequisites before filling the examination. So before applying for the online examination, obviously certain certificates are also required. So certificates आपकी ये तो आपको हो गया प्रोफाइल बिल्डिंग. उसके बाद जब आप कोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको क्या डालना होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पे 10th की डिग्री, आईडी प्रूफ के नाम पे आपको आप आधार कार्ड ले लीजिए अपना, फोटो आईडी प्रूफ, क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ द लास्ट सेमेस्टर विद मार्कशीट्स यानी कि BCA की आपकी और BSc अगर आप BCA स्टूडेंट तो BSc की मार्कशीट्स, योर मेलिंग एड्रेस विद पिन कोड. जैसे अगर मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ तो मेरा पिन कोड 160036, तो आप अकॉर्डिंगली अपने एरिया का पिन कोड जरूर डालेंगे. विदाउट पिन कोड इट इज रिजेक्टेड. ऑब्वियसली एनेक्चर 1 एक इंक्लूडेड है इनकी वेबसाइट पे जिसमें कि आपको पूरे सेंटर्स के कोड्स दिए गए हैं. तो आप कोई भी 4 सेंटर्स सिलेक्ट कर लेंगे, उसके 4 कोड्स आप कॉपी कर लेंगे. ये नहीं कि आप उस टाइम पे जाएंगे, बिकॉज देखिए जब आप अपना पोर्टल छोड़ के जाते हैं तो वो पोर्टल कहीं ना कहीं वो बैक एंड में बंद हो जाता है, राइट. सो पहले ही आप अपने 4 सेंटर्स वहां से नोट कर लीजिए, उसके 4 कोड्स नोट कर लीजिए कि आपने कौन से सेंटर्स लेने हैं. तो आई शुड टेल यू आपके जब भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट होगा वो आपको जो अलॉट होगा वो आपकी प्रायोरिटी पे अलॉट होगा, राइट. जैसे अगर आपने पहला चंडीगढ़ भरा है, दूसरा आपने दिल्ली भरा है, तीसरा आपने कोई भी भरा है से जो भी एग्जामिनेशन सेंटर भरा है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी तभी जितनी जल्दी आप फॉर्म फिल करेंगे उतनी ही जल्दी आपको आपका डिजायर्ड फर्स्ट सेंटर मिलेगा, राइट. सो ट्राई कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें. जैसे सेंटर्स फिल हो जाएंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा. अगर ये सेंटर फिल हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट सेंटर, और अगर ये सेंटर फिल हो जाएगा तो उससे नेक्स्ट सेंटर. सो अगर आपको अगेन फिर कोई हेल्प की जरूरत हो तो माय आर इन्फॉर्मेट्स मोबाइल नंबर्स एंड इन्फॉर्मेट्स helpline numbers are given in the description. You can copy the numbers and you can call us for any other further details.
कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका रेडी होना चाहिए, स्कैन होना चाहिए आपके, और लेस देन 100 KB, राइट। ईमेल आईडी, एड्रेस, नंबर्स इन जेपीजी फॉर्मेट्स। सो ये सब आपके पास, तो अप्रोक्सीमेटली आप देखिए कि जब फोटोग्राफ्स हैं वो आपके 50 KB से डाउन होनी चाहिए, और जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके 100 KB से डाउन होने चाहिए, राइट। कैंडिडेट्स स्कैन सिग्नेचर्स, ये सब आपके पास फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स आपके पास पेन ड्राइव में या आपके लैपटॉप में होने चाहिए। हाउ टू स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन, अब ये आगे की है तो हमारी थी प्रीक्विज चीज। अब स्टार्ट जब आप करेंगे, सबसे पहले आपका कैंडिडेट नेम आएगा, यू हैव टू गिव अ वैलिड कैंडिडेट नेम, योर मदर्स नेम एंड योर फादर्स नेम एज गिवन इन योर इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन। ये नहीं कि अगर आपकी मदर का नाम राधा रानी लिखा हुआ है तो आप सिर्फ राधा ही लिखेंगे, आप पूरा नाम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द, अगर आपके फादर का नाम जो भी सरनेम है विद सरनेम लगाएंगे। अगर आपका नाम सिर्फ सुरेश है तो आप सिर्फ सुरेश लगाएंगे। सुरेश कुमार अगर आपका है, आप बाद में आप कुमार लगाना शुरू किया तो आप ये नहीं लगाएंगे। जो भी आपका 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग आपका नाम है आप वही नाम लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देंगे, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फिर आप फिल करेंगे। अगर आप किसी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, दैट इज ओबीसी, एससी, एसटी, तो यू हैव टू गो फॉर इट। आपको वहां पे एक कॉलम आएगा रिजर्वेशंस का, so over there you will be getting the option of OBC, SC, ST और economically weaker section, so you have to accordingly select the option, जो भी आपके ऑप्शन होगी, और उसके रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने हैं, राइट। चॉइस ऑफ द सिटी सेंटर्स आएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका चॉइस ऑफ द सिटी सेंटर्स होगा, एंड ऑब्वियसली पिन कोड, देन यू हैव टू गो फॉर योर normal postal complete address, you have to put a complete address with a pin code. If the pin code is not provided, your forms are liable to be rejected, right? So कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो आपके घर पे भी हो सकती है। जो इनकरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेसेस हैं, the application are liable to be rejected. So choice of this again the examination center, next point होगा आपको अपना examination center चूज करना होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे आपको, 1, 2, 3, 4 according to the priority. So उसके आप कोड्स पहले से ही रेडी रखिए, right? Then you have to upload your photograph. Then finally आपको next step आएगा, there will be uploading the photograph. अपनी photograph upload कीजिए। photograph आपकी 80% क्लियर होनी चाहिए, no goggles, no caps, white background पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हर एक फोटोग्राफ आप white background जो भी अपलोड करते हैं white background पे होनी चाहिए आपकी, right? It should be very very clear, blurred नहीं होनी चाहिए, पुरानी फोटोग्राफ नहीं होनी चाहिए, लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। अगर लेटेस्ट फोटोग्राफ होगी जो कि आप वहां पर दिखाएंगे अपनी सेंटर पे, वो आपकी मैच होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 10th की फोटोग्राफ डाल रहे हो, 12th की फोटोग्राफ डाल रहे हो, अब आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, तो 3 साल में फिजिकल चेंजेस बहुत होते हैं बच्चों में, फेस में चेंजेस होते हैं। तो ये नहीं कि 10th और 12th बच्चों वाली फोटोग्राफ डाल दो और ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई कर रहे हो आप। सो फोटोग्राफ आर अगेन लायबल टू बी रिजेक्टेड। फोटोग्राफ्स नीड नॉट बी टेस्टेड, ये नहीं कि आप फोटोग्राफ के ऊपर का पहले था कि आप फोटोग्राफ के ऊपर अपना नाम लिखिए, जैसे हम लिखते थे सुरेश, राइट। फोटोग्राफ छुप जाती है, सो नो अटेस्टेशन इज रिक्वायर्ड। कैंडिडेट्स should put a photograph 6 to 8 passport size photograph with the white background, right? So make it very sure कि आपकी फोटोग्राफ जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। उसका जो साइज है वो 10 to 200 KB तक होना चाहिए। अगेन सिग्नेचर्स, तो मैंने आपको बोला कि सिग्नेचर्स आपके प्रॉपर होनी चाहिए। एक वाइट शीट लीजिए, उसके ऊपर ये नहीं कि सिर्फ नाम लिख दीजिए, पुट अ सिग्नेचर्स ऑन अ, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, पुट अ सिग्नेचर्स इन रनिंग हैंडराइटिंग। इस पार्ट को स्कैन कर लीजिए एंड उसका रेजोल्यूशन अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए, 4 KB to 30 KB, राइट। द कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर्स ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक एंड स्कैन। अगेन ब्लैक इंक पेन देना आपको। काफी बच्चे ब्लू से भी कर देते हैं, रेड से भी कर देते हैं, लायबल टू बी रिजेक्टेड। आपको अगेन वहां से डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, योर फॉर्म हैज बीन रिजेक्टेड। सी फोटोग्राफ कोई भी आप प्रूफ डालते हैं, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड है, चाहे वो आपका आईडी प्रूफ्स हैं, अगर वो गलत हैं तो वो फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली रिजेक्ट हो जाता है। काफी बच्चों को एनआईटी में बहुत प्रॉब्लम आया ये वाला, इमीडिएट एडमिट कार्ड नहीं रिलीज हुआ, व्हाई? बिकॉज फॉर्म वाज रिजेक्टेड। और किस बेस पे रिजेक्ट हुआ फॉर्म, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, और जेएन इज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दीज थिंग्स। वो रिजेक्ट कर देते हैं फॉर्म, भागते रहोगे फिर इधर। तो बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रख के ही पेपर्स को आप करिए। एंड फाइनली देयर इज अ फी पेमेंट, यू कैन मेक द फी पेमेंट्स बाय एनी मेथड्स लाइक डेबिट कार्ड,
कैन पे बाय डेबिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, यू कैन पे बाय क्रेडिट कार्ड, और यू कैन पे बाय ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग से भी पे कर सकते हैं. मेनी ऑप्शंस आर देयर, यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शंस रिगार्डिंग द पेमेंट्स, right? So basically in the end I would finally summarize the important points to be noted during the form filling of the GNU. So the candidates before submission of the online application form must be eligible. अपनी eligibility check कीजिए, right? Candidates should fill their complete postal address with a PIN code, right? Email ID and the mobile numbers should be working and should not be कि आप उसको देखते ना हो, because all the communications will be made on the mobile numbers and the email IDs. So postal candidates should not give the postal address, mobile number, email ID of any other coaching center. जैसे अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं कि चलो मेरा यहाँ पे पोस्ट आ जाएगा, हम कोचिंग सेंटर में डाल देते हैं. So कोचिंग सेंटर्स वाले are not allowed to be authorized to take any of the communication from JNU regarding any student. So online application forms may be done or assessing the NTA official website also. आप official website पे भर सकते हो, right? Cannot be withdrawn. आप एक बार अपनी admission withdraw लेके आप बाद में withdraw नहीं कर सकते हो. Eligibility criteria, अगर आपका application form किसी भी candidate का incomplete है या photograph नहीं है या कुछ भी नहीं है, it is liable to be rejected. So काफी criterias हैं, ये किसी भी base पर आपका form reject कर सकते हैं. आपके जो ऑप्शंस ऑफ द चॉइस सेंटर्स हैं या ऑप्शंस ऑफ द फॉर्म फिलिंग के आपके जो 3 कोर्सेज हैं, मेक इट वेरी श्योर जो 3 कोर्स हैं वो आपस में क्लैश ना करें, उनकी डेट्स क्लैश ना करें. डेट्स तो चलो सेम है बट उनके स्लॉट्स क्लैश ना करें. अदरवाइज आपको एक ही का जो आपका मेजर प्रायोरिटी है आपको उसके लिए एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा. जो आपके सेंटर्स हैं, मेक इट वेरी श्योर कि वो 4 सेंटर्स आप भरेंगे वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हो, कि पहले आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बाद और उसके बाद. So it should be on the basis of the priority. Then selection of the candidates test the provisional subject for being found otherwise eligible for the. So selection of a candidate in the test is provisional subject to being found otherwise eligible, because जब भी आपकी selection हो जाती है it is provisional. It's saying वो उसके बाद all the certificates will be checked during the admission or the appointment. And in the case of the candidates found predicting incorrect information, so कभी भी incorrect information मत डालिए, then obviously you have to face the penal action. So make it very sure जो भी आप डालें वो एक confirmed way से हो. So copy of the confirmation page of the online application form should be there with you. Proof of the fee payment should be there with you. Photographs जो कि आपने उस टाइम पे अपलोड की थी वो सेम होनी चाहिए आपके पास. ये सब आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा in the physical when you'll be going over there. If there is any change in the photo ID proof or your change in name or anything else, you have to get you have to make an affidavit for this from the court, and finally you have to present before JNU authorities. And finally they have again told that in case of technical issue or due to natural disaster like COVID की वजह से अगर ये एग्जाम रीस्केड्यूल होता है या उस डेट से कैंसिल होता है, so NTA may follow the process of normalization of the 2 test forms as per the policy. That means again से reschedule किया जाएगा. हो सकता है उस टाइम पर सितंबर में क्या कंडीशंस हो कोविड की, so उसके अकॉर्डिंग NTA will be taking the full responsibility for the normalization again, for following the process. जब तक कि सारा कंडीशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाता then again टेस्ट कंडक्ट होगा आपका, right? So in the end, finally steps to complete, I'm saying, giving you again and again, don't miss this. Apply the online registration form with the online email with a particular unique email ID and the mobile number. Fill the complete application form, scan photographs and signatures, your address should be permanent, and the fee payments. This is how you can do it. So this is, and there is no refundance cases is there. And for the free video lectures, dear students, I have already opted for you. Like, go for our video channel, YouTube India, Informatics India, our YouTube channel. Over there, you will find a lot of video lectures of maths, reasoning, quant, computers, and English. Apart from this, various salt papers of JNU, DU, NITs, Punjab University, Chandigarh, which will help you a lot in your preparation for MCA Entrance 2021. And these things are only there कि जब आप सीखते हैं कि हाँ अब आपकी final preparations हो चुकी हैं. Even for the mock tests, and you find some part is missing, अगर आपको कुछ lagging लग रहा है कि आपका calculus weak है, आपका permutation weak है, आपका probability weak है, and you have to fix it in 30 days or in 20 days, then you can, it's a very good offer for you that Informatics has launched a subscription passes on its Android app, that is Course Edu. You can buy a subscription pass for 7 days, 14 days, and 30 days.
Over there you will find the video lectures, test series and the mock test series of all the particular chapters of maths, reasoning, quant, computers and English. You can do anything. What do you feel like मेरा weak है, I should go for it. अगर आपके पास teachers नहीं है, you are preparing for yourself. This is the best option for going for the subscription passes, which is available for at Course Edu app at a very nominal price. And obviously, to be connected with Infomats all the time for the latest information for all the forms, how to fill the forms, what are the prerequisites, do subscribe our YouTube channel Infomats India. Over there, we always regularly put the videos. Obviously, our Telegram group, that is MCA Entrance @NIMSET and other top universities. Our Instagram handle Infomats_India _MCA, our Facebook handle Infomats India, and obviously our helpline number is always with you. Do visit our website, that is Infomats India, infomatsonline.com. Over there, what is beneficial in that website is you will always find the previous year papers and solutions for the various top universities of India, जो कि आप हर साइट में ढूंढते हैं, but you never get it. यहाँ पर आपको solutions मिलेंगे, जो video lectures मिलेंगे, they will be exact and accurate without any discrepancies. So on the Infomats website, there are daily updations for the papers, daily updations for the various notifications which are out by the universities. So these channels are really of great help. So all the links for YouTube channel, Instagram handle, Facebook page and our website are there available on the description. So you can search in the description and you can finally join us through any mode. So till then, all the best.